So, in this class, we are going to begin trigonometric ratios of compound angles. Okay, so what is the meaning of compound angles? I'm going to explain you, but everyone, first of all, write down the formula which I am writing on the board. I want everyone to copy it down and then we will see a formula kya hai. So, right. So, the name of the topic is trigonometric ratios of compound angles. So just write down the way I'm just writing in the formula, nothing else. I'll explain you what is this. So everyone, copy down these formulas. Hurry. So everyone note down. You all know what is the meaning of trigonometric ratios. That is clear to everyone. You all know like sine theta, cos theta, tan theta. These functions are called trigonometric ratios. You know why? Because every function represents a ratio of two sides of a right angle triangle. Okay, it represents ratio of two sides. So it is clear to everyone. Now see, we can express any angle. We can express any angle. Like let's say for example 45 degree. So we are finding that here sine of 45 degree can be expressed as a sum or difference of more than one angles. Okay, it can be expressed as a sum or difference of more than one angles. Like we can write 45 degree as sine of 30 degree plus 15 degree. And what is the meaning of compound angles? Compound angles means this is the trigonometric ratios or functions. Its angle can be expressed as a sum or we can say difference of two or more than two angles. So compound angle का मतलब क्या होता है? जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में एक एंगल नहीं, अगर उसमें दो या दो से ज्यादा एंगल्स हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं. ओके, मतलब मिनिमम वहां पे दो एंगल्स होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव साइन ऑफ 60 degree plus 45 degree. Is this clear? We have got sine of 60 degree plus 45 degree. Now here we find that this particular trigonometric function
एंगल इज सम ऑफ टू एंगल्स। क्या यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका एंगल दो एंगल्स का सम है या नहीं? एक 60 डिग्री है, दूसरा क्या है 45 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। मतलब यहाँ पे एक एंगल नहीं है, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो एंगल का सम है या फिर डिफरेंस हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। नाउ हाउ टू डील विद दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस? In order to deal with these kind of situations, please make sure everyone note down. I cannot multiply sine with 60 degree as well as 45 degree. I cannot multiply. If I multiply, means I am violating the rules of trigonometry. What is that rule of trigonometry? You all know that sine theta is not same as sine into theta. मतलब sin theta जो एक trigonometric function है, वो क्या sin into theta के बराबर है? एकदम नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना तुम लोग कि साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे साइन को 60 और 45 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज कब होता है? जब अलजेब्रा करते हैं हम लोग। तो जैसे और अलजेब्रा में क्या होता है? ए है और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट हटाने के लिए ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। ये क्या बताओ? तो ये पूरा इसका एंगल है। जैसे कि मान लो साइन का ये पूरा एंगल है, ये जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है मैथ्स में, इसमें साइन का मीनिंग और 45 डिग्री का अलग अलग मीनिंग भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना? इसका मैंने ये बार बार मैं बताया जा रहा हूं कि यहाँ पे साइन और 45 डिग्री को हम लोग कभी भी ऐसे रीड नहीं करते दैट दिस इज साइन इनटू 45 डिग्री। वी नेवर रीड दिस वे। क्लियर? इट इज साइन 45 डिग्री, मतलब ये पूरा एक चीज हुआ। तो इस तरह का सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कैसे डील करेंगे? we will deal with these formulas. Like if you have sine of a plus b, it can be written as sine a into cos b plus cos a into sine b. Please note down everyone. Okay, never multiply sine with a and sine with b. Sine of, and please everyone note down, always read this as sine of a plus b. Don't read sine a plus b. Sine a plus b गलत हो गया। कैसे गलत हो? मैं बता रहा हूं तुम लोग। देखो ध्यान से, मैं इसका एक बार क्लियर मतलब बता दूं। I want everyone to pay attention here. अच्छा बताओ तो यहाँ पे इस मैं भी जो लिख रहा हूं इसमें और फिर जो मैं भी सेकंड वाला जो स्टेप लिख रहा हूं इसमें क्या फर्क है? बता सकते हो तुम लोग? कोई बता सकता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? यस एनीवन? यस चलो। सर काला वाला साइन 60 प्लस 45 वो खाली एक साइन सिंगल थीटा है। वेरी गुड। ये पूरा एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे लेट मी जस्ट इसको पूरा मैं अच्छे से बता दूं। व्हाट यू हैव सेड इज 100% करेक्ट। यहाँ पे साइन का ये पूरा एंगल है, पूरा थीटा है। मतलब एक थीटा को हम दो एंगल्स के सम में लिखें, तीन एंगल के सम में लिखें, चार एंगल के सम या डिफरेंस में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा साइन का ये पूरा एंगल है। जैसे हम थीटा बोलते हैं तो यहाँ पे थीटा क्या है? दो एंगल्स का सम में। और इस केस में थीटा क्या है बताओ साइन का? सर 60 डिग्री। वेरी गुड। यहाँ पे साइन का एंगल सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री ये अलग है। मतलब ये अलग है। मतलब इसका अगर कोई वैल्यू पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2 प्लस 45 डिग्री। बस इतना तक ही रह जाएगा। बिकॉज साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 और प्लस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 45 डिग्री मतलब क्या? बस वैसे ही। समझ में आया बात? तो बस वैसे का वैसे रह जाएगा। तो वैसे एग्जैक्टली सेम वे याद रखना, यहाँ पे साइन ऑफ 60 इसको हम कैसे रीड करेंगे? साइन ऑफ 60 प्लस 45। आई विल नेवर राइट दिस एज साइन 60। आई विल नॉट राइट। मैं ये बोला, मैंने ये नहीं बोला ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख नहीं सकते, गलत है। इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग को इस तरह का सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, इस तरह का सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के तौर पे निकालने के लिए हम लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज यूज करना होगा। ओके, सो मेक श्योर दैट साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है sin a into cos b plus cos a into sin b। साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या है? sin a into cos b minus cos a into sin b। नेवर रीड दिस एज sin a minus b। गलत तरीका होता है लिखने का। परफेक्शन में जाना चाहिए। परफेक्शन में जाओगे तो हमें जो छोटे-छोटे चीजें वो भी क्लियर होगा, मतलब समझ में आएगा, डिफरेंसेस समझ में आएगा कि ये और ये डिफरेंट कैसे है। उसके बाद cos of a plus b का ये फॉर्मूला, ठीक है, tan of a plus b का, ये cot of a plus b का। ये सारी चीज हम लोग जो है डेरिवेशन अभी नहीं, आगे हम लोग देखेंगे।
अभी उस फॉर्मूला कॉपी कर लो, अब हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे, मतलब एप्लीकेशन विल डू राइट नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज. Okay, so for this everyone note down the PDF which I have sent just now. अभी जो मैंने PDF आज भेजा है उसका पहला पेज सबको निकालो, ठीक है? I know that you all don't have print out of that page, but फिर भी जहां पे जो मैंने भेजा है वो एक बार निकालो, if you and just look here, pay attention. So everyone take out the first page. Can you see this first page? It is very simple one. I mean, तुम लोग इतना ये सॉल्व करने में मजा आएगा, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, तो ध्यान देने का पहला. सो यहाँ पे हम लोग को नंबर 1 में प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट. और पहला नंबर में हम लोग को प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूं, ठीक है? आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड द क्वेश्चन इज sin 80 degree into cos 20 degree minus cos 80 degree into sin 20 degree, and we have to show that this expression, this trigonometric expression results root 3 by 2. This is what we have to prove here. Now can anyone tell me that इस पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने का कौन सा फॉर्मूला तुम लोगों की कॉपी में है, बताओ मुझे. अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबको को क्लियर है? तो किसी ने कॉस भी बोला था, जिसने कॉस बोला था अपने कॉपी में देखो और देख के बताओ क्या यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज होगा? कभी यूज नहीं होगा. यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज होगा, वो भी सेकंड नंबर फॉर्मूला जो मैंने दिया, अपने कॉपी में चेक कर दो. देखो इसको ध्यान से नोट करने का तरीका, ये 80 डिग्री को हम A मान लेते हैं और 20 डिग्री को हम लोग B अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? लेट अस कंसीडर 80 डिग्री एज A एंड 20 डिग्री एज B एंड लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. जस्ट नोट डाउन sin A into cos B minus cos A into sin B. चेक करो फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकते हैं फॉर्मूला क्या है? बताओ तो. Sin of A minus B. I want to hear sin of A minus B. Correct. Don't say sin A minus B. Don't say sin A minus B. Don't say sin A minus sin B. ये सब गलत है. Sin of A minus B. So where A is 80 degree and B is 20 degree. A is 80 degree and B is 20 degree. Now what is 80 minus 20? It is equal to 60 degree. And what is the value of sin 60 degree? It is root 3 divided by 2. Now this is what we have on the right hand side. Hence proof. Is this clear to everyone here? So don't you think that it is very simple one? Number 1 के अंदर जितना भी questions है, मतलब total there are 9 questions. These are all simple, and in every case you will have to just apply the formula of compound angles. Okay, now I want to hear from you all. These are very simple things. You all can tell in just line. Number 2 के LHS में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? चेक करके बताओ. cos A plus B. cos A plus B कभी नहीं बोला. Cos of A minus B. पहली बात है कि तुमने जो बोला है cos A plus B, ये तो मत बोलना, cos of A plus B बोलना. Wrong right जो भी हो, लेकिन थोड़ा तुम्हारा जो सिंटेक्स होना चाहिए, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, वो सब सही होना चाहिए. देखो ये किस फॉर्म में, cos A into cos B plus sin A into sin B. And what is cos A into cos B plus sin A into sin B? This is cos of A minus B, not cos of A plus B. Okay, and 75 plus 15 degree is equal to how much? 90 degree. And what is the value of cos 90? Sorry, just a minute, let me check this. It is equal to cos of A minus B, that is cos of 75 minus 15. So 75 minus 15 क्या होगा? 60 degree. और cos 60 degree का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है. सबको अपने अपने कॉपी में चेक करना. मैं इस ये वाला जो बोल रहा हूँ नंबर 2 का, ये जो है फॉर्मूला नंबर 3 को मैच कर रहा है. चेक कर लो अपने अपने कॉपी में.
Actually, formula number 3, cos A into cos B plus sin A into sin B, which is cos of A minus B. All right, everyone. So I want everyone now to do few questions जो मैं दे रहा हूँ solve करने के लिए. सबको अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का you will be doing sum number 3. Then we have number 5 and 6. Here your concept will be clear कि कैसे formula apply किया जाता है. And the last is number 8, not last, 8 and number 9. मतलब इसका number 1 का इतना सारा सम सभी करना. So I'm giving you time 5 to 7 minutes time, and then at the end I'll discuss. मैं बीच में नहीं डिस्कस करूँगा. पहले तुम अपने आप से कोशिश करो 7 minutes टाइम देना, 7 to 8 minute टाइम, और आराम से करो. फॉर्मूला को आराम से रख करके और देखो कि कौन सा का फॉर्मूला आता है. And then we will discuss. So let us discuss these questions first, okay? Now the first question. Note down everyone. I mean number 1, number 3. In this sum we find that we have got left hand side, which is cos 130 degree into cos 40 degree plus sin 130 degree into sin 40. That is clearly in the form cos A into cos B plus sin A into sin B. So what is the formula of cos A into cos B plus sin A into sin B? It is cos of how much? A minus B. अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको cos of 40 डिग्री minus 130 डिग्री लिख सकता हूँ? क्या ये सही है? चलिए yes or no? No, sir. Anyone who thinks that this is correct? Any? Yes? Yes, sir. Exactly, हम लोग लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ इसका कारण. अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा होता तो फिर हम x into y को, अच्छा पहला नंबर ये बताओ मुझे, क्या x into y को हम लोग y into x लिख सकते हैं? हाँ या नहीं बताओ. लिख सकते हैं. तो एक बात बताओ, तो फिर एक बात बताओ, cos 130 into cos 40 को अगर हम cos 40 into cos 130 लिख के रिप्रेजेंट कर दे तो कोई गलती, और यहाँ पे sin 40 डिग्री into sin 130 लिख के रिप्रेजेंट कर दे तो कोई गलती, कहीं गलती दिख रहा है? बताओ. x into y और y into x सेम होता है ना, तो कहीं गलती तो नहीं दिख रहा है ना. एवरीथिंग इज करेक्ट, वी आर नॉट वायलेटिंग एनी रूल्स, डेफिनेटली इट इज करेक्ट. अब एक बात बताओ, मैं अगर 40 डिग्री को a मान लूं और 130 को b, तो क्या गलत है इसमें? मैं ना भी इस तरीके से लिखूं और इसको मैं a मान लूं और इसको b, तो भी सही है, डेफिनेटली सही है. और इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? cos ऑफ 40 डिग्री minus 130 डिग्री आ जाएगा. व्हाट इज 40 minus 130? टेल मी. -9. यहाँ पे क्या है? प्लस 90. अब तुम लोग सोच रहे हो दोनों का आंसर कैसे सेम आएगा? सेम आएगा क्यों? क्योंकि cos और माइनस थीटा क्या होता है बताओ? cos theta. cos थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री? 0 होता है. सो दोनों से एक ही आंसर है. सो दिस इज द वे हाउ वी विल डिस्कस एंड मूव अहेड. ओके, सो ये हो गया पहला पॉइंट. तो ये से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इस समय क्या है, क्लियरली हो गया. Now the next question is number 5. It is cos of n plus 2 into x into cos of n plus 1 into x plus sin of n plus 2 into x into sin of n plus 1 into x. So एक चीज को नोट करना सबको यहाँ पे कि ये n plus 2 into x ये पूरा एंगल है cos फंक्शन का, ये भी पूरा एंगल है cos फंक्शन का. तो यहाँ पे क्लियरली कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? देखो एक बार, cos a into cos b plus sin a into sin b. So what is cos a into cos b plus sin a into sin b? It is cos of a, yes, cos of in the bracket a हो गया n plus 2x और b हो गया n plus 1x. Alright everyone, a हो गया n plus 2x और b हो गया n plus 1x. Alright everyone, make sure that you use this bracket. ये ब्रैकेट का यूज कंपलसरी है. ओके, अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है इसको सिंपलीफाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा nx, ओके, प्लस 2 into x is 2x
Minus plus minus n into x is nx, minus plus minus 1 into x is x. तो यहाँ पे देखो nx कैंसिल हो गया और 2x minus x x हो गया. So this is what we have on the right hand side. Okay, so we have discussed number 3 and 5. Now let's see number 6. Now 6 number में भी क्या देखना है? We have cos of pi by 4 minus x into cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into sin of pi by 4 minus y. और हम लोग को शो करना है कि ये sin of x plus y के बराबर है. ये हम लोग को शो करना है. ऑलराइट, तो एक बार ध्यान से नोट करना. तो बताओ जो कोई मुझे हेल्प करो, like how you all have done. Tell me all the ways. Yes, anyone? Cos of a plus b. Cos of a plus b. ऐसा तो नहीं ना कर दिया तुम लोग? यहाँ पे cos of a minus b का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर दिया तुम लोग. ऐसा तो नहीं किया? Cos of, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया ना? Cos of a minus b का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड, यहाँ पे भी एक्सपैंड, यहाँ पे भी एक्सपैंड, यहाँ पे भी एक्सपैंड. पता है तुम्हारा पूरा कॉपी बढ़ जाएगा देखते देखते. I mean you don't do this way. Don't try this way. Okay? इसमें सबसे बेटर क्या है कि पूरा pi by 4 minus x को पूरा a कंसीडर कर लेते हो. ठीक है? pi by 4 minus y को पूरा b कंसीडर कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, मैंने क्या बोला? cos of pi by 4 minus x, pi by 4 minus x को पूरा a कंसीडर कर लेते हैं. pi by 4 minus y को b कंसीडर कर लेते हैं. तो ये कैसा फॉर्म है बताओ तो? cos a into cos b minus sin a into sin b. So tell me everyone, what is cos a into cos b minus sin a into sin b? Tell me. Cos of a plus b. It is cos of. So cos of जो है वो भी एक बहुत बड़ा, I mean मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. तो इसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर a plus b इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सोचेंगे. हमेशा याद रखना, एक एक स्टेप सोचो. एक स्टेप सोचने के बाद इस स्टेप के बाद सोचो. एक बार में पूरा लास्ट तक आंसर हम लोग नहीं सोच सकते. एक एक स्टेप सोचो, आराम से सारा स्टेप्स होते जाए. इतना एक बार में क्यों दिमाग में खर्च करेंगे? पहले हम यहां से देखते हैं कि इसको रिड्यूस कैसे करें. रिड्यूस हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एंगल का पार्ट को कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई. तो ये हो गया cos ऑफ pi by 4 minus x plus pi by 4 minus 1. ऑलराइट, अब pi by 4 plus pi by 4. What is pi by 4 plus pi by 4? Take LCM. It is 2 pi by 4, that is pi by 2. Alright, so pi by 4 plus pi by 4 becomes pi by 2. एक बात बताओ, माइनस एक्स माइनस वाई से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये एक्स प्लस वाई बच जाएगा. माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये एक्स प्लस वाई बच जाएगा. क्योंकि हमको शो क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, प्लीज नोट डाउन. हम लोग को प्रूव करना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. क्या प्रूव करना है हम लोग को? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूव करना है. सो एवरीवन टेल मी, व्हाट इज कॉस ऑफ, लिसन हियर, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 को डिग्री में एक बार कन्वर्ट करके देखो तो क्या होगा? पाई बाय 2 को इक्वल 90 डिग्री. तो एक बात बताओ, कॉस, ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बताओ तो क्या होगा? साइन थीटा होता है. फिर ये हो गया साइन ऑफ थीटा. थीटा क्या है? x plus y. This is what we have on the right hand side. Okay everyone, so everyone copy down this two things. Like if you all have doubt, then we'll move on to the next sum, that is number 8. So I'm just discussing once, okay, so that it is clear to everyone. Now question number 8. In question number 8, it is very clear that we have to apply the formula of tan function. So everyone tell me, what is tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B? It is clearly tan of A plus B, right? It's clearly tan of A plus B. So what is 69 degree plus 66 degree? It is 135. 135. Now tell me, I don't know how I have to solve this now. Can anyone help me? Tan of theta kaise milega? Sir, So tan equal to 90 plus 45 degree. Very good. So we can simply write this as tan of
1 into 90 plus 45. 1 into 90 plus 45 means second quadrant, जिसमें tan क्या होता है? Negative. 1 odd है तो tan cot में convert हो जाएगा. And what is the value of cot 45 degree? Is 1. So this is RHS. So the sums are very very simple. Last number 9. अच्छा number 9 बताओ तो कितने लोग कर पाए? 9 number. सर हम किया लेकिन आंसर तो श्योर नहीं. वेरी गुड. 2 जन दिख रहा है मुझे. 5 जन दिख. वेरी गुड. 6. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. अच्छा क्या तुम लोगों ने a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया? मुझे हैंड्स डाउन. क्या तुम लोगों ने a plus b होल स्क्वायर और a minus b होल स्क्वायर नहीं किया? तो वेरी गुड. इसका मतलब राइट हो. अगर ये नहीं किया तो फिर बहुत बढ़िया. तब तो फिर एकदम छोटा आई मीन 2-3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा. एक्चुअली इसमें बहुत लोगों को देखने के बाद सब पता है क्या लग रहा है कि फॉर्मूला लगा देते हैं a plus b होल स्क्वायर. देखो यहाँ पे a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना से सम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. Now just listen here. We have to show that it is equals to 1. क्या शो करना है कि ये 1 के बराबर है. तो ध्यान दें. सबसे पहला चीज a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कभी मत पाएगा. बहुत कॉम्प्लेक्स होगा. Rather than a plus b whole square, you apply sin a to cos b plus cos a to sin b is how much? What is sin a? Sin of alpha. Sin of a plus b. All right, everyone. It is sin of a plus b. Similarly, cos a into cos b minus sin a into sin b is how much? Cos of A plus b. a plus b. Plus b. All right. Now यहाँ पे sin थीटा. थीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है. थीटा यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा है. तो sin थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चेक करने को ऐसे. और यहाँ पे cos थीटा का होल स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा. All right. Now tell me what is sin squared theta plus cos squared theta equals to 1. 1. This is equal to 1. This is what we have on the right hand side. All right, everyone. तो ये बहुत ही आसान सा है. कॉपी कर लेना सकते हैं. इसका भी डाउट हो. Now everyone just note down the next questions, okay? And now we will begin number 2. And just everyone look here the questions. देखो question क्या है? Evaluate. राइट हम लोग को इवैल्यूएट करने सारे सम्स को. जैसे कि sin 15 डिग्री, cos 345 डिग्री एंड सो. ये सारी चीजों को सिंपलीफाई करना. तो पहले हम लोग 2-4 चीज को पहले क्लियर कर लेते हैं. देखो लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल के जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल 90 से बड़ा होता है तो उसको फिर n into 90 के फॉर्म में करके सॉल्व और पहले उसको 0 to 90 के बीच में लेके आ जाओ. करते तो आखिर में यही थे ना लोग. जो भी एंगल, क्योंकि phi क्या था? phi is an angle less than 90. phi is an angle less than 90. इसका मतलब हमेशा जो एंगल आएगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा. तो हमेशा हम लोग ये करते थे कि नहीं. अब अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो एंगल्स अगर एक्यूट है, जैसे कि मान लो 50 डिग्री sin 50 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स सी. और अगर मान लो तो लेट्स पहले हम लोग एक बार ये एग्जांपल लेते हैं. 90 से बड़ा होगा तो हम लोगों को पता है कि चलो n into 90 करके हम लोग 0 to 90 के बीच में ला दिए. लेकिन 0 to 90 के बीच में लाने के बावजूद भी अगर if I express in between 0 to 90 also, then also after that suppose the angle is not a standard angle. suppose मान लो ये कुछ और चीज था. पहले मान लो suppose ऐसा कुछ था cos 105 डिग्री ऐसा कुछ था और तुम लोगों ने इसको 1 into 90 पर करके कुछ भी सॉल्व किया तो माइनस था सपोज और ये आ गया. चलो ऐसा ले लेते हैं. तो क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है? नहीं. लेकिन हम लोग जो है अभी हम लोग ने आज जो हम लोग ने कंसेप्ट सीखा है कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट, तो हम लोग इस एंगल को क्या कर सकते हैं? हम लोग दो स्टैंडर्ड एंगल्स का सम या डिफरेंस में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा
बट लेट वी कैन ट्राई वंस। समझ में आने क्या बोला? देखो ये तो लेस देन 90 है ना, 50 डिग्री तो लेस देन 90 है, तो इसमें वो n into 90 वाला रूल तो काम ही नहीं करेगा, पहला नंबर पॉइंट। तो अगर ये 0 90 के बीच में भी है तो ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं। स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या होता है? 0 30 45 60 90, तो ये तो स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो आज टॉपिक सीखा है वो टॉपिक के हिसाब से इस एंगल को हम लोग कोशिश कर सकते हैं दो स्टैंडर्ड एंगल का सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करने का। तो मुझे कोई बता सकता है 15 डिग्री को अगर हम कोशिश करें एक्सप्रेस करने को, तो 15 डिग्री कौन से दो स्टैंडर्ड एंगल का सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस होता है? देखो बहुत लोग 60 माइनस 45 बोल रहे हैं, बहुत लोग 45 माइनस 30 बोल रहे हैं, दोनों ही करेक्ट। बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, बोथ ऑफ योर आंसर इज करेक्ट, बोथ वेज आर करेक्ट। ओके, आई मीन ये भी करेक्ट है कि हम लोग 15 को 45 माइनस 30 लिखें, क्योंकि 45 माइनस 30 is also equal to 50 degree and 60 minus 45 is also equal to 50 degree। बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए दोनों, और दूसरा क्या है कि हम लोग को पता है कि हम एक एंगल को कंपाउंड एंगल में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे टूल्स हैं, वो सारे हमारे पास तरीका है, लॉज है, जिसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। है कि नहीं? बताओ तो क्या ऐसा इस चीज को सॉल्व करने का हमारे पास रूल्स है या नहीं? है कि नहीं? बताओ तो वैसे सॉल्व कर सकते कि नहीं? रूल्स लगा करके अपना मनमानी रूल्स ऐसा कर सकते कि नहीं? ऐसा नहीं कर सकते? नो सर। श्योर एवरीवन, ऐसा नहीं कर सकते? तभी मैंने बोला कि अपना मनमानी रूल्स लगा के कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मनमानी अपना थोड़ी ना रूल्स हम लोग इस तरह का कुछ भी मन में वो कर देंगे। I cannot violate the rules of trigonometry. If I do this, I am violating the rules of trigonometry. This is absolutely wrong. I want to show, because many students after explaining, after giving, I mean ये लाइन को बार-बार रिपीट करने के बावजूद भी they will do this particular thing, I mean mistake in this line. What? सर इतना क्यों करने का है? सर ये तो sin of 45 minus 30 है, तो मुझे दिख रहा है sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और sin 30 का वैल्यू हाफ होता है। दिख रहा है, दिखने से नहीं होगा, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं पहले वो देखना पड़ेगा। क्या हम sin of 45 minus 30 को क्या वैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो ये लाइन को इजी कर नहीं लिख सकते। तो फिर यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? sin of a minus b का फॉर्मूला, which is sin a into cos b minus cos a into sin b. Is this clear to everyone? Yes, sin of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई किया। What is the value of sin 45 degree? कितना होता है इसका वैल्यू? कितना होता है? 1/√2 होता है। into cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। 1/√2 into half। 1 into √3 is √3। You get 2√2। Take LCM। This is an answer। Is this clear to everyone? Please copy it first। You can even write 60 minus 45, you'll get the same answer। So everyone wrote down the next sum, that is number 2। You have to evaluate, and the question is cos 345 degree। Can you tell me? Can you help me? Can you give me the concepts, logics, like कि कैसे ये सबको solve करना चाहिए? Anyone? I'm waiting for your answer। 90 into 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। 90 into सॉरी 90 into n into 90 के फॉर्म में, राइट? क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 4 into 90 minus 15 डिग्री। ऑलराइट, 4 into 90 minus 15 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें cos पॉजिटिव होता है। 4 इवन है तो cos, and you all know how to find out cos 15 डिग्री, अभी हम लोगों ने देखा था, ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ तो 3 नंबर को हम क्या कर सकते हैं? बताओ 3 नंबर को, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? बिकॉज़ सेम ही तो एक ही जैसा है। 15 को 45 minus 30 लिख के सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, अब एक बार मुझे ये पीडीएफ स्क्रीन पे देखना सबको अपना। बताओ तो tan 105 डिग्री का वैल्यू कैसे मिलेगा? बताओ तो, हेल्प करो। tan 60 plus 45। वेरी गुड, 2 तरीका है इसको करने का। हम ऐसे भी जा सकते हैं। नंबर 3 के में tan 105 डिग्री है तो tan, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसको 60 plus 45 लिख दूं,
और tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है विच इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b। एक ऑप्शन हम लोग के पास ये है, क्योंकि हम लोग को पता है tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं 1 into 90 प्लस 15 डिग्री लिख के इसको हम लोग 0 to 90 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद cot 50 डिग्री आ गया। यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस। कैन यू सॉल्व दिस? cot 50 डिग्री का वैल्यू सबको निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग ओवरऑल डिस्कशन कर लें कि क्या है ये सब टॉपिक्स इस टॉपिक में। नंबर 2 में एक बार ध्यान देना, तो ये हो जाएगा। अब नंबर 4 एक बार रीड करो तो सबको। नंबर 4 में क्या है देखना एक बार। cos 195 डिग्री का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ 150 एंड 45। तो कोई बता सकते हैं? इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, कुछ हम लोग को बता दिया है, कंडीशन बोल दिया है कि यही करना है तुम लोग। तो बताओ तो cos 195 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos of 150 degree plus 45 degree। 195 डिग्री में अगर देखो, पहला बात, अगर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देता तो हमारे पास चॉइस था। चॉइस क्या था? इसको हम 2 into 90 प्लस 50 डिग्री लिख के इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यू ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट cos 50 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 195 डिग्री का वैल्यू निकालो यूजिंग 150 एंड 45। तो फिर हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या? हम लोग को यहाँ पे 195 को ऐसे एक्सप्रेस करके cos of a plus b का फॉर्मूला है। Are you all getting my point? Like जो मैं बोल रहा हूँ, क्या is this clear to you? हाँ बोलो। सर वैसे ले लेगा, लेकिन सर फिर फॉर्मूला इसका में cos a plus b का सर ये हम लोग का वैल्यू 150 डिग्री लेना पड़ेगा। तो सर cos 150 डिग्री को भी हम लोग को आगे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। Exactly, cos 150 का रफ में कैलकुलेशन कर लेना, 1 into 90 plus 60 करें और वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि आता ही है तुम लोग वैल्यूज निकालना। ठीक है, is this clear? समझ में ना क्या बोला मैंने? जैसे इट इज दिस क्वेश्चन इज वेरी मच करेक्ट कि cos 150 जब आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? आता ही है तुम लोग को 1 into 90 plus 60 लिख के वैल्यू पुट कर देना। सो एवरीवन लिसन हियर, एक काम करो तुम लोग सबको। ये जो नंबर 1 है, तुम लोग यहाँ पे बहुत सारा सम्स किया आज। नंबर 1 का सारा सम्स ट्राई करेगा फिर से वापस, ऑल द क्वेश्चंस, एंड नंबर 2 का सारा क्वेश्चंस। सिर्फ नंबर 1 एंड नंबर 2 करना है। ओके, आज के क्लासेस के बाद तुम लोग को होमवर्क नंबर 1 और 2 सारा